Hello students, how are you? Good morning. Today we are going to start our new chapter of Standard 12. Chapter number 6, General Principles and Process of Isolations of Element. Right? हमें अगर मेटल का आइसोलेशन करना है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड है बाय विच प्रोसेस वी कैन आइसोलेट देम वो सब इसमें हमें स्टडी करना है. सही है. लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड द आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. राइट. व्हाई नीड टू स्टडी आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स. You know, these are the cookwares, right? If we talk about that cookwares, they are most of made of by stainless steel. Some are made by copper or aluminum, right? Like we use metals for the making of cookwares, right? It is a punja thali, right, which is made by the copper, which is also one metal, right? It's our ornaments. We mostly use the ornaments of gold, silver, right? Sometimes of platinums. This is a wire in which we also use a copper as a conductor or aluminium wires, right? It's a building. For the construction of building we are using different metals part, right? If we talk about the shapes, trains, aeroplanes, or any other vehicles, right, they all are made by any of metals. We use direct metal or the alloys, right? But if we talk about our routine life, we are using metals on every step of life, right? Now it's our routine. Now we talk about some history, right? So we know that there is a if we talk about the prehistory, then there is two age. One is the age of stone and second is the age of metal, right? In age of metal there is also three parts. One is copper age, second bronze age, and third one is iron age, right? The copper age time is 4000 to 2200 before Christ, right? The bronze age timing is era time is 2200 1000 before Christ, and the iron age is from 1000 before Christ, right? Now there is some weapons or things which are made by a copper in copper age, right? You can see this in this picture. This is some weapons which are made during the bronze age, right? And they are the weapons are made during the iron age, right? Means we are using different metal from so many years ago, right? In different ways. If you talk about the Mohenjo-daro, right, these ornaments are made during the Mohenjo-daro, right? They are made from the gold and silver, right? There are some coins, right? Means if we see our history or our current scenario, right, we are using metals in so many ways, right? Now the metals are two type. One is less reactive and second is high reactive, right? If we distribute that metal, some metals are less reactive and some metals are highly reactive, right? Less reactive metals are in free state in nature, right? Because they are less reactive, they did not react with other compound easily, other element easily, so we can obtain them from nature in free state, right? Example, gold and platinum. While other metals are highly reactive, they never obtain in a free state, they always combine with any other element and form a combined compound, so we will get in that metals in a combined state, right? That metals are
zinc, copper, iron, etc. Right? Means if we talk about this is our earth, you can see that there is the outer layer of our earth is known as earth crust, and most of matter are found in that earth crust, right? Now there is a percentage of some metals which are present in a earth crust. You can see that the most of part of that earth crust is made by oxygen, right? Means in oxygen is the most abundant element, right? And then from the earth crust, then silicon which having 28% of earth crust, राइट? जितने भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में हमें फाउंड होते हैं उसमें से 47% ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होंगे, 28% सिलिकॉन्स के कंपाउंड होंगे, सही है? फिर आता है 8% एल्यूमिनियम. मीन्स वी कैन से दैट द थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट और फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम मोस्ट एबंडेंट है, और एलिमेंट की बात करें तो उसका नंबर आता है थर्ड पे, सही है? तो वो मोस्ट एबंडेंट मेटल है विच इज ऑब्टेन्ड और फाउंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, राइट? देन द नंबर इज कम ऑफ आयरन विच हैविंग 4.5 नियर अबाउट 4.5%, राइट? जो भी मेटल्स कंपाउंड हम अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं उसके 4.5% किसके हैं? आयरन के. देन कैल्शियम, और बाकी के जो 9% है उसमें सारी और मेटल्स होती है लाइक जिंक, गोल्ड, सिल्वर, टीन, राइट? सो जो हमारा आउटर लेयर है अर्थ क्रस्ट का उसमें से क्या फॉर्म, उसे क्या बोलते हैं हम? अर्थ क्रस्ट. और उसी अर्थ क्रस्ट में जो हमारे मेटल्स थी जो टू टाइप की है, लेस रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्री स्टेट में पाई जाती है और जो हाईली रिएक्टिव है वो कंबाइंड स्टेट में. लेकिन वो मोस्ट ऑफ कहाँ से मिलती है हमें? तो अर्थ क्रस्ट में से. और जो वो अर्थ क्रस्ट है उसमें वो फ्री स्टेट में हो, उसके नेटिव स्टेट में हो या कंबाइंड स्टेट में हो, कंपाउंड के फॉर्म में हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है प्रेजेंट अर्थ क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम. और अगर हम मेटल की बात करें, क्योंकि जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से दे आर, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एंड सिलिकॉन इज अ semi metals, right? So if we talk about the metals, the most abundant metal is aluminum which is found in earth crust, right? Now if you mine metals from the earth crust, you will get the metals like this टाइप ऑफ मटेरियल, राइट? अगर हम किसी भी मेटल को क्या करें उसमें से निकालें अर्थ क्रस्ट में से, तो वो कैसे फॉर्म में मिलेगी? यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसे फॉर्म में हमें क्या मिलेगी? तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलती है, सही है? Minerals, the compounds of metal that occurs in a nature along with rocky and other impurities are called minerals, right? जैसे कि हमने बात की अभी क्या बात की, तो जो हमारा मेटल्स थे वो कैसे फॉर्म में मिल रहे थे हमें? तो आपने देखा यहाँ पे आप 3 पिक्चर्स देख रहे हो कि अगर हम किसी भी मेटल को उसके अर्थ क्रस्ट में से निकाल रहे हैं तो हमें वो इस फॉर्म में मिल रहे हैं, सही है? तो ये जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है? मिनरल्स, सही है? जिसमें द कंपाउंड ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स के कंपाउंड है वो नेचर में से हमें जिस फॉर्म में मिलते हैं विद द रॉकी एंड अदर इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड द मिनरल्स, राइट? Here the some minerals of iron, right? Means if we found iron from, or we mine the iron from the earth crust, they can be extracted in a different compound, different minerals, right? जो आयरन है वो अर्थ क्रस्ट में different फॉर्म में होता है, वो different कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया,
सही है, सिडेराइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, तो ये सारे क्या है, मिनरल्स ऑफ आयरन है। सही है, अगर हम आयरन को अर्थ क्रस्ट में से निकालने की बात करें तो वो जब भी हमें जिस कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता है वो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होंगे जिसके अंदर आयरन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सही है। अब ये तो हमने बात की कि आयरन इस डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या ये सारे जो मिनरल्स है उसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके साथ तो इम्प्योरिटीज़ भी जुड़ी हो रही है, तो नहीं। The minerals from which a metal can be extracted commercially or economically is called the ore। सही है, मिनरल्स में कोई ऐसे ही मिनरल्स होंगे कि जिसमें मेटल का अमाउंट परसेंटेज ज़्यादा होगा। सही है, और उसी मिनरल्स में से हम क्या करेंगे, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सही है, तो जिस मिनरल्स में अगर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें और हमें क्या हो, तो प्रॉफिट हो, जिसका हम कॉमर्शियली लार्ज स्केल पे जिस मिनरल्स में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मिनरल्स को बोलते हैं ओर। सही है, मतलब हमने जैसे कि बात की आयरन के मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हो कि आयरन एक्सट्रैक्ट किस में से किया जाता है, तो हेमेटाइट में, क्योंकि बाकी के जो मिनरल्स है उसमें जो आयरन है उसका अमाउंट बहुत कम है। अगर उससे में से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट हो जाए और आयरन जो मिले उसका अमाउंट बहुत कम हो। तो हम सारे मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनमें उनका अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। सही है, अगर हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्साइट का। बॉक्साइट में से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो बॉक्साइट एक मिनरल तो है, सही है, एल्यूमिनियम का, लेकिन उसे हम और भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करें तो हमें जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है। सही है, क्योंकि बॉक्साइट में जो एल्यूमिनियम है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है और इम्प्योरिटीज़ का प्रोपोर्शन कम है। सही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। सही है, आई बात समझ में। जैसे कि हमने देखा कि जो आयरन थे, सही है, जो आयरन था हमारा, तो इसके इतने सारे मिनरल्स थे, लेकिन हम उस आयरन को सिर्फ हेमेटाइट में से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन का अमाउंट, उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। अगर उसमें से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आयरन मिलेगा उससे हमें प्रॉफिट होगा। सही है, तो उस टाइप के मिनरल्स को क्या बोल सकते हैं, हम ओर बोल सकते हैं। सही है, तो ये एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है हमारी मेटल्स, उसके सम ओर्स है। सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। आई बात समझ में कि जो हमारे सारे मिनरल्स है वो और नहीं है, लेकिन जो सारी ओर्स है वो क्या है, मिनरल है, क्योंकि सारे मिनरल्स में से हम प्रॉफिटेबली मिनरल्स को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होंगे जिसमें बहुत लेस अमाउंट में हमारी मेटल प्रेजेंट होगी। अगर उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने जाए तो हमें तो लॉस होगा, तो उस मिनरल्स को हम और नहीं बोल सकते। मीन्स ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल, क्योंकि जो ओर्स है वो भी तो मिनरल ही है, लेकिन और किसे बोलते हैं, जिस मिनरल्स में से अगर हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करने से प्रॉफिट होता है तो उसी मिनरल को ओर बोलते हैं। मतलब कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। आई बात समझ में। अब जैसे कि बात की हमने मिनरल्स में तो क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। सही है, तो जो वो इम्प्योरिटीज़ है, द undesired impurities present in the ore are called
और मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, सही है, मिनरल में जो इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि जो मेटल चाहिए उसके साथ तो क्या होगी? इम्प्योरिटीज़ भी होगी। वो इम्प्योरिटीज़ रॉ की इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है और अदर कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है, सही है, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में से मिल रहा है। और जैसे कि हमने बात की, ये मेटल्स कैसी है, तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव मेटल होने के नाते वो क्या करेगी, तो किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी और कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगी। तो अगर हम आयरन एक्सट्रैक्ट करना चाहे तो आयरन कंपाउंड में शायद क्या हो सकता है? टीन भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। तो वो जो टीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, दे आर नोन एज अ गैंग और मैट्रिक्स। सही है, मोस्टली गैंग को हम जो हमारी सैंडली इम्प्योरिटीज़ होती है, सही है, उसे गैंग बोलते हैं। मतलब जो मिनरल्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय द ओर प्लस गैंग, क्योंकि ओर क्या है? जिसमें मेटल प्रेजेंट है वो, और गैंग क्या है? जो इम्प्योरिटीज़ है वो। तो ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करेगा? हमारा मिनरल फॉर्म करेगा, सही है। अब क्या है, तो हमें तो मेटल चाहिए, ओर चाहिए, सॉरी गैंग चाहिए नहीं। तो द सब्सटेंस विच इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड इन द ओ टू combine with gang and form fusible compound is called flux। सही है, क्या बोल रहे हैं? फ्लक्स क्या है? तो हमने जैसे बात की कि मिनरल्स में क्या है? ओर्स है और प्लस में साथ में गैंग है, सही है। तो जो गैंग है वो अनडिज़ायर इम्प्योरिटीज़ है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसे हमें क्या करना होगा? निकाल देना पड़ेगा। तो उसी इम्प्योरिटी को निकालने के लिए अगर हम मिनरल के अंदर, हमारी ओर के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें, सही है, कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें विच कंबाइन विथ गैंग, वो मेटल को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ गैंग के साथ कंबाइन होगा, सही है, और क्या कर देगा? फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म कर देगा, एक लिक्विड टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर देगा गैंग के साथ कंबाइन होके, सही सही है। तो उस सब्सटेंस को जो ऐड कर रहे हैं सब्सटेंस, उसे क्या बोलेंगे? फ्लक्स, सही है। मतलब जो हमारा क्या है? सब्सटेंस है जिसे हम ऐड कर रहे हैं, किस में? ओर में। उस ओर में से उस सब्सटेंस को ऐड करने से वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन क्या करेगा? वो गैंग के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म कर देगा? एक फ्यूजिबल कंपाउंड, सही है। तो जो कंपाउंड ऐड कर रहे हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। और जो फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सही है, क्या? जो फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं, सही है। मतलब फ्लक्स को ऐड कर रहे हैं, जो ऐड कर रहे हैं वो सब्सटेंस कौन सा है? फ्लक्स है। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? हमारे गैंग पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा, और जो फॉर्म करता है फ्यूजिबल कंपाउंड उसे क्या बोलते हैं? स्लैग। वो मोस्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म में होता है, ताकि हम क्या करेंगे? उसे आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? मतलब फ्लक्स है ऐसा कंपाउंड जिसे हम और में ऐड करें तो वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो अनडिज़ायर इम्प्योरिटीज़ है हमारी गैंग पार्टिकल्स से, उसके साथ वो क्या करेगा? एक कंपाउंड फॉर्म कर देगा। तो जो ऐड कर रहे हैं वो सब्सटेंस हो जाएगा फ्लक्स। जो फॉर्म हो रहा है फ्यूजिबल कंपाउंड, सही है, उसे क्या बोलेंगे हम? स्लैग। सपोज के हमारा जो ओर है उसके अंदर SiO2 की, सिलिका की क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ है। अगर उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर दें तो वो CaSiO3 फॉर्म करेगा, सही है, उसे क्या बोलेंगे हम? स्लैग। जे हमारा CaO हो गया जो हम ऐड कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फ्लक्स। और जो SiO2 थी हमारी ओर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, सिलिका हमारी ओर में क्या था? प्रेजेंट था एज अ इम्प्योरिटी, तो उसे बोलेंगे हम गैंग। आई बात समझ में? जो हम फ्लक्स ऐड कर रहे हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो न्यूट्रल फ्लक्स होता है, दूसरा एसिडिक फ्लक्स होता है, और तीसरा बेसिक फ्लक्स होता है, सही है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का गैंग होगा। जिस टाइप का गैंग होगा
उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फ्लक्स सारी गैंग के साथ कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। हमें क्या करवाना है, तो हमें ऐसे फ्लक्स को ऐड करना है जो उसके साथ क्या करेगा, फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। सही है, तो जो फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म करे वैसा कंपाउंड हमें ऐड करना है। सपोज़ कि हमारे उसमें क्या है, SiO2 की इम्प्योरिटीज़ हो, तो जैसे कि हमने बात कर ली कि किसे हम ऐड कर रहे हैं, CaO की, मीन्स कि लाइमस्टोन को हम ऐड कर रहे हैं। मतलब जिस टाइप की इम्प्योरिटीज़ की उसके अकॉर्डिंग हमें फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सही है, तो वो फ्लक्स 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। न्यूट्रल फ्लक्स का एग्जाम्पल हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिडिक फ्लक्स का एग्जाम्पल है सिलिका एंड बोरेक्स, बेसिक फ्लक्स है हमारे लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट एंड फेरिक ऑक्साइड। सही है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई क्या? एक तो हमने देख लिया फ्लक्स, दूसरा देख लिया स्लैग। उससे पहले हमने बात की किसकी, हमारे गैंग पार्टिकल्स की। सही है, जो इम्प्योरिटीज़ है हमारी, उससे पहले बात की हमने ओर्स की, जिसमें से जिस मिनरल्स में हम प्रॉफिटेबली क्या कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिली, जिसमें हमें प्रॉफिट हो, ऐसी मिनरल्स को हम ओर कह सकते हैं। और जो हमारा कंपाउंड जो हमें डायरेक्ट अर्थ क्रस्ट में मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। आई इतनी बात समझ में? ओके, चलो अब आगे बात करते हैं हम। तो ये कुछ हमारे क्या है, ओर्स है सम मेटल्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तो वो ज़्यादातर किस में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइड में से। तो ये बॉक्साइड एल्यूमिनियम की ओर हो गई, उसकी कंपोजिशन है AlOx OH3 2 - x, और यहाँ पे x की वैल्यू होती है 0 या 1 के बीच में। सही है, चलो दूसरा है उसे कैलोनाइट में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादातर क्ले के फॉर्म में होता है। फिर बात करें हम आयन के ओर्स की, तो आयन ज़्यादातर हेमेटाइट में से किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो हमारी मेटल है, सही है, उस मेटल की ओर कौन सी है और उसकी कंपोजिशन क्या है। अगर आयन की बात करें तो आयन के लिए हम ये सारी ओर्स है, हेमेटाइट हो गई, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयन पायराइट्स हो गई। सही है, अब जो हेमेटाइट है उसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, मतलब कि जब भी कंपाउंड में वो आयन फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में होगा आयरन, सही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमेटाइट बोलेंगे। अगर हमारा Fe3O4 के फॉर्म में है आयरन, तो उसे बोलेंगे मैग्नेटाइट। सही है, अगर वो आयरन कार्बोनेट फॉर्म के फॉर्म में है, मतलब आयरन जो कार्बोनेट है उस और को हम बोलेंगे सिडेराइट। आयरन पायराइट्स किसे बोलेंगे, तो जिसमें आयरन सल्फाइड है उसे बोलेंगे हम आयरन पायराइट्स। सही है, जो कॉपर की ओर से वो कौन सी है, ये है कॉपर पायराइट्स हो गई, मेलेचाइट हो गई, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लैंस। जो कॉपर पायराइट्स है वो कौन सी है, तो CuFeS2। सही है, आपको उसकी कंपोजिशन भी याद रखनी है कि उसकी ओर के नाम के साथ आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन आनी चाहिए। वो ज़्यादातर MCQs में पूछी जाती है क्या, तो ये इस मेटल की ओर कौन सी है या फिर इस ओर की केमिकल कंपोजिशन क्या है। जो मेलेचाइट है उसका कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्राइट कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया हमारा, और कॉपर ग्लैंस मीन्स Cu2S। सही है, आई बात समझ में? अब जिंक ओर की बात करते हैं, तो जिंक ओर हमारी क्या हो जाएगी, तो जिंक ब्लेंड, और उसे बोलते हैं सेलराइट। सही है, मतलब के ZnS जिंक सल्फाइड, उसे क्या बोलेंगे हम, जिंक ब्लेंड। जो कैलामाइन है वो क्या है हमारा, जिंक कार्बोनेट, और जिंक के साइड है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, ये सारी हमारी मेटल्स की ओर हो गई। जो ज़्यादातर मेटल्स हम यूज़ करते हैं उसकी ओर्स के नाम है, और उस साथ में उसकी केमिकल कंपोजिशन दी गई है। सही है, तो इस टेबल को आपको MCQ के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
अब आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था, वाई नीड टू स्टडी आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, वो अभी तक अधूरा है, क्योंकि हमने जो बात की वो किसकी बात की कि जो मेटल्स है कहाँ से मिलते हैं, उसका यूज़ क्या है. वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल, ऑलराइट, बट आइसोलेशन अभी तक कहीं नहीं आया है. Right, in starting we talk about the uses of importance of metal in current scenario and in the history, right. Then we talk about the minerals which are found in the earth crust, right, and we extract them. Then the mineral having a large proportion of metal are known as ore. जो ore है उसके साथ impurities होती है, they are known as a gangue, right. By the use of flux we can remove the gangue in the to convert it into a slag, right. And we see some important ores of some metals. Now हमारा question from which we started, why need to study isolation of matter, it's also remaining. If you see that we use the matter, they are in the form of this type of thing, राइट. अगर हम किसी भी, ये एल्यूमिनियम हो गया हमारा, या गोल्ड हो गया, या फिर आयरन हो गया, सही है, ये कॉपर हो गया, तो जब भी हम उससे मेटल को यूज़ करते हैं तो ऐसे फॉर्म में यूज़ करते हैं. और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की, वो तो कैसे फॉर्म में है, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में है, और हम तो इसे ऐसे प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं, सही है. तो इस प्योर फॉर्म में जो कन्वर्जन है, सही है, जो हमारा मिनरल है उसे ऐसे प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स है उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोलेशन. मतलब कि पहले हमारा क्या हो गया, तो पहले हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ मटेरियल जो हमारा क्या है, मिनरल्स और ओर्स, सही है, ये रॉ ओर है जो डायरेक्ट हमने अर्थ क्रस्ट में से एक्सट्रैक्ट कर लिए. उसके बाद क्या करते हैं, तो जो सैंडली इम्प्योरिटीज़ है हम उसे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. और उस रिमूव की प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. मतलब हम क्या करते हैं, ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और उससे इम्प्योर फॉर्म में, मतलब हम ऐसे उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वो निकाल के, अगर इम्प्योरिटी निकाल देंगे तो जो ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा. मतलब पहले हम रो ओर में से क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मतलब जो सैंडली इम्प्योरिटीज़ थी जो अर्थ क्रस्ट में से आई थी वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो गए, लेकिन अभी और भी एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी अंदर प्रेजेंट है. उस इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना है, रिमूव करना है. मतलब कि पहले हमें कॉन्सेंट्रेशन और मिली, अब उसमें से हमें क्या मिलेगी, इम्प्योर और, सही है, जिसमें क्या है, तो अभी भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, सही है. उससे निकाल के हम उसे किस फॉर्म में लाएंगे, प्योर फॉर्म में. और उस प्योर फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर. तो हम जब भी उस मेटल्स को यूज़ करते हैं ऐसे फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, सही है. लेकिन जो हमें मिलता है वो तो कौन से फॉर्म में मिलता है, और फॉर्म में मिलता है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है. तो उस इम्प्योरिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है. और उसी रिमूवल को हम बोल सकते हैं आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सही है. तो इसे क्या बोलेंगे हम, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. मीन्स के पहले हमें क्या करना है, तो अर्थ क्रस्ट में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, माइनिंग के थ्रू से क्या करना है, बाहर निकालना है. फिर उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है. वो इम्प्योरिटीज़ भी तो दो तरह की होती है, एक तो जो सैंडली इम्प्योरिटीज़ होती है इसीलिए थोड़ा सा रिमूव हो जाएगी. उसके बाद जो एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी है उससे भी हमें अंदर से निकालना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट स्टेप यूज़ करने पड़ते हैं. और उसी को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है कि कौन सी इम्प्योरिटी होगी तो कौन से स्टेप थ्रू हम उसे रिमूव कर सकते हैं, सही है. तो जो मतलब हो गया कि जो हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है.
पहला स्टेप क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, मतलब कि उसमें से हमें इम्प्योरिटीज़ को निकाल के, ओर में से इम्प्योरिटीज़ को निकाल के उसे कॉन्सेंट्रेट करना है, जो हमारी मेटल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें बढ़ाना है, उससे बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देन आता है रिडक्शन ऑफ ओर। रिडक्शन ऑफ ओर में क्या करते हैं हम, तो जैसे कि हमने बात की जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव कर दी, लेकिन जैसे हमने देखी ओर्स के तो वो हमारे मेटल कार्बोनेट्स के फॉर्म में थी, मेटल सल्फाइड के फॉर्म में भी थी, सही है, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में भी था वो। लेकिन हमें तो मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड नहीं चाहिए, हमें तो प्योर मेटल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सल्फाइड को, कार्बोनेट को, सही है, या ऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा। और उसी रिमूवल के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप है कि सल्फाइड को अगर रिमूव करना है तो डिफरेंट प्रोसेस होगी, कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होगी, ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होगी। तो ये जो सारी बातें हैं उसे बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ ओर, कि उसे हमें मेटल में कन्वर्ट करना है। कैल्शियम का कॉपर कार्बोनेट हो गया तो उससे हमें कन्वर्ट करना है कॉपर में, अगर जिंक सल्फाइड हो गया तो उसे हमें कन्वर्ट करना है जिंक में, सही है, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ओर। और लास्ट स्टेप हमारा होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर। क्या होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर, मतलब कि हमने मेटल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली है, अब हमें जो उसके कंपाउंड थे उसमें से कॉपर या फिर जिंक या फिर आयरन मिल गया है, लेकिन फिर भी तो वो इम्प्योर है, अभी तो प्योर फॉर्म में नहीं आया है, सही है। तो उस प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसे क्या करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वे से उसका रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग करना मतलब उसे प्योर फॉर्म में लाना, सही है। तो उस प्योर फॉर्म में लाने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और उसी को हम पूरे जो ये हमारे 3 स्टेप हो गए उसे बोलते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और वो जो एक्सट्रैक्शन है, जो कंसंट्रेशन करना है, रिडक्शन करना है, रिफाइनिंग करना है, वो कौन सी मेटल है, कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, उस पर डिपेंड करता है, सही है। मतलब अगर डिफरेंट इम्प्योरिटी है तो डिफरेंट वे होंगे, डिफरेंट मेटल है तो डिफरेंट प्रोसेस होगी, सही है। तो इस चैप्टर में हमें वही स्टडी करना है कि कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं, कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सी मेटल को किस वे से हम प्योर ला सकते हैं, सही है। तो ये जो सारी बात है उसे क्या बोलते हैं हम, मेटलर्जी भी बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, मेटलर्जी। तो metallurgy is the whole process of preparation of pure metal from its ore is called the metallurgy, सही है। तो जो हमने ore कलेक्ट की उसमें से प्योर मेटल फॉर्म करने तक की जो सारी प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में ये सारी चीज़ें आ जाती है, कौन सा, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिडक्शन ऑफ ओर और रिफाइनिंग ऑफ ओर, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, मेटलर्जी, सही है। तो जो प्रोसेस है ओर में से मेटल को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की उसे बोलते हैं मेटलर्जी। तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मिनरल्स, ओर्स, गैंग, फ्लक्स, स्लैग, राइट, एंड वाई वी need to do this isolation of metal, right? If there is any confusion or query, then you can write in comment and send me, right? Thank you.